ضلع بڈگام میں ٹیکہ لگانے کے بعد مبینہ طور پر ایک اور بچے کی موت واقع ہو گئی ہے۔ سویابگ میں پرائمری ہیلتھ سینٹر پر ٹیکہ لگانے کے بعد 45 روز کے ایک بچے کی موت ہوئی۔ اہل خانہ نے الزام لگایا کہ ٹیکہ لگوانے کے بعد متاثرہ بچے میں کچھ بدلاؤ آنے شروع ہوئے، جس کے بعد بچے کو جی بی اسپتال لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے بچے کو مردہ قرار دیا۔ بی ایم او ڈاکٹر تسلیمہ نے کہا کہ کمسن بچے کی موت کن حالات میں ہوئی، اس کی جانچ کا حکم دے دیا گیا ہے۔ ضلع بڈگام میں ہی گزشتہ روز بھی ٹیکہ لگانے کے بعد ایک کمسن بچے کی موت ہوئی تھی۔ ایسا ہے کہ ان کا پہلا ڈوز تھا، جو ہم روٹین امیونائزیشن کرتے ہیں بچوں کو، وہی امیونائزیشن کرنے یہ بچے آئے تھے۔ ایک بچہ ہمیں تھا 49 ڈیز کا، 47 ڈیز کا۔ ان کا پہلا ڈوز لگنا تھا ایل پی وی جو ہم دیتے ہیں، یا پی این وی دیتے ہیں، یا ہم یہ دیتے ہیں اس میں پی سی وی دیتے ہیں، اور ہم دیتے ہیں اس میں جو او پی وی دیتے ہیں۔ یہ 4-5 ویکسین ہم دیتے ہیں۔ ان کا پہلا ڈوز 45 ڈیز پہ، تو یہ وہی ڈوز لگوانے آئے تھے۔ ہم نے کل 16 بچوں کو ان وائلوں میں سے انجیکشنز لگائے۔ 16 میں سے جو ہے یہ 2 بچے جو ہے، ایک بچہ جس کا نام یہ فیاض احمد میر کا بیٹا تھا، تو وہ ٹھیک تھا، چلا گیا گھر۔ 1 گھنٹے پونے گھنٹے کے بعد بیچاری ماں واپس لے کے آئی کہ ام سے تھوڑا یہ گسان کھا نہیں پا، دودھ چھن رہا ٹنگ، تو ہم نے اس کو دیکھا، ہمیں لگا کہ اس کو ریئیکشن ہو گئی ہے اس انجیکشن کی۔ ہم نے اس کو اس ٹائم تھوڑا سا وہ ریوائو کیا، اس کو انجیکشن وغیرہ لگایا جو ہائیڈرو کارڈ لگاتے ہیں، وہ لگا کے ہم نے اس کو ایمبولینس میں بھیج دیا وہاں پہ جی بی پنت ہاسپٹل، تو وہاں پہ اس کی لیکن ڈیتھ ہو گئی۔ کپواڑہ ضلع کے شہرکوٹ بلگام بھندواڑہ میں ایک پراسرار دھماکے میں ایک خاتون کی موت ہو گئی۔ حادثے میں ایک خاتون شدید زخمی ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب ماں بیٹی نزدیکی جنگلات سے کچھ سبزی حاصل کرنے کے بعد گھر پہنچی تھی۔ پولیس ذرائع کے مطابق انہوں نے جنگل سے کوئی بوسیدہ شیل بھی لایا تھا جو زوردار دھماکے کے ساتھ پھٹ گیا۔ اس سے دونوں ماں بیٹی زخمی ہو گئیں۔ انہیں اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ماں نے زخموں کی تاب نہ لا کر دم توڑ دیا۔ اس واقعے کے بعد پورے علاقے میں غم و ماتم کی لہر دوڑ گئی۔ پولیس نے کیس درج کر کے جانچ شروع کر دی ہے۔ تقریباً 2:30 بجے کے قریب میں اپنے گھر میں بیٹھا تھا، باہر ہی بیٹھا تھا، تو بلاسٹ کی آواز، بہت زوردار بلاسٹ ہو گیا، تو باہر سے چلانے کی آواز آئی، تو میں نے دوڑ لگائی۔ جب میں ان کے گھر پہ پہنچا تو یہ ماں اور بیٹی خون میں لت پت تھے۔ جب ہم اندر پہنچے، انہوں نے چیک اپ کیا، ڈاکٹرز نے چیک اپ کیا، تو انہوں نے اس کو کہا کہ یہ ڈیتھ۔ اس میں سب سے پہلے جب میں نے دیکھا ان کو گاڑی بلا کے، میں نے ایس ٹو صاحب کو فون کیا، افتخار صاحب کو فون کیا، پولیس نے بھی کوآپریٹ کیا، اور یہاں پہ میڈیکل سٹاف ہے جو لوئی کتان دڑت، مگر ونس کنفرم گھان کہ یہ لویا کنس کن یہ اتی پھٹا کن جانس۔ میں ون گوڑ سر دس گیس مٹ پھٹ، مگر پتہ وچ تک گیس مٹ پھٹمت تک، کیا گیس مٹ نشان گیس مٹ روزے کھوک تتی، تو تین سن کہیں باقی میں پتہ لگتا ہے اللیجڈ بلاسٹ انجری ہے۔ تو ان میں سے ایک براڈ ڈیڈ ہے ہمیں، اس کا نام گلنازہ بانو ہے، جو 25 ایئرس کی ایج ہے، وہ براڈ ڈیڈ ہے، اس کی ملٹیپل انجریز تھی۔ اور ایک سارا بیگم، وہ 55 ایئرس کی ایج ہے، اس کو ملٹیپل انجریز ہے، اس کو ہم نے ریفر کر دیا SMHS۔ ڈی جی پی دلباغ سنگھ نے کہا کہ کووڈ کی وجہ سے ملیٹنسی مخالف آپریشنز میں کچھ کمی واقع ہوئی ہے، تاہم یہ آپریشنز جاری ہیں۔ ملیٹنسی کو ختم کرنے کے لیے پولیس پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنوبی کشمیر میں 100 سے زائد ملیٹنٹ سرگرم ہیں، اور یہ گراف کم زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ ڈی جی پی نے ملیٹنٹ صفوں میں شامل ہو رہے نوجوانوں سے ایک بار پھر امن کی راہ پر لوٹنے کی اپیل کی ہے۔ ڈی جی پی آج جنوبی کشمیر کے اننت ناگ اور کلگام اضلاع کا دورہ کیا۔ انہوں نے کئی تعمیراتی پروجیکٹوں کا افتتاح کرنے کے علاوہ پولیس ویلفیئر اسکیموں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے افسران کے ساتھ کئی میٹنگوں کی صدارت کی۔ انہوں نے امن و قانون کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ سنگھ نے کہا کہ پولیس ہر سطح پر بنیادی ڈھانچے کو مضبوط بنانے کے لیے کام کر رہی ہے۔ پولیس ہر وقت ہر ممکن کوشش اس میں کر رہی ہے کہ ہم لوگ ایسے بچے جن کو ورگلایا گیا ہے، جو اس طرف جا سکتے ہیں، ان کو واپس لائیں، جو بارڈر لائن پہ کھڑے ان کو واپس لائیں۔ میں جہاں کی بھی بات کروں تو ایسا گروپ انہوں نے پہلے کچھ عرصہ پہلے پکڑا جو لگ بھگ تیار تھا جوائن کرنے کے لیے، مگر ان کو اس راستے سے روکا گیا۔ اسی طریقے سے اننت ناگ، اونتی پورہ، جب باقی ضلعوں کی بات کرو تو بہت سارے بچے ایسے ہیں جن کو ہم لوگوں نے جوائن کرنے سے پہلے ہی واپس لایا ہے۔ انفارچونیٹلی یہ سلسلہ جاری ہے، کیونکہ ابھی بھی پاکستان کی جو ایجنسیاں اس کام میں لگی ہوئی ہیں، جن کا کام ہے کہ ریکروٹمنٹ چلتی رہے،
जिनका काम है कि जो टेररिस्ट आउटफिट लश्कर तौबा, जैश मोहम्मद और अल-बदर जैसे हैं उनको और ऑक्सीजन मिलती रहे, उनको और जिंदा और मजबूत करने की कोशिशें उनकी तरफ से जारी हैं। मगर पहले से बहुत फ़र्क पड़ा है, बेहतर है हालात। इसमें मैं कहना चाहता हूँ नौजवान बच्चों को कि ये रास्ता बर्बादी का है, इस तरफ नहीं जाने का है, इसमें कुछ नहीं मिलता है। हम लोग ऑपरेशन के दौरान भी बार बार अपील करते हैं, ख़ासतौर पे अगर कोई नए लड़के उसमें शामिल हों, पुराने तो जल्दी सरेंडर नहीं करने का फैसला करते या नहीं करते हैं, और कोशिश रहती है, वो कोशिश कामयाब भी हुई, बहुत जगहों पे लड़कों ने सरेंडर किया। हमारी उस हद तक भी कोशिश रहती है कि अगर लड़का ज्वाइन कर लिया तो भी उसकी जान बचे और माँ बाप के पास वापस लौट सके, और कोशिश इसमें जारी रहेगी। मुझे लगता है कि इस वक्त जितना है वो काफ़ी नहीं है, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत है। ओवरऑल काफ़ी कम हुई है। इनका जो शुमार इनका है, फिगर्स इनकी हैं, वो टाइम टू टाइम ऊपर नीचे होती रहती हैं। आज 100+ थोड़ा फिगर्स इस वक्त उसके आसपास हैं जो इस वक्त लोग एक्टिव हैं अलग अलग आउटफिट्स के, और मुझे उम्मीद है कि ये गिनती और कम होगी आने वाले टाइम में। अवंतीपुरा पुलिस ने मिलिटेंसी ज्वाइन करने की नीयत रखने वाले 6 नौजवानों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नौजवान मिलिटेंटों की सफ़ों में शामिल होने का इरादा रखते थे। मिलिटेंटों के एक मॉड्यूल का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने उनके 7 माविन गिरफ्तार कर लिए हैं। पुलिस ने उनके कब्जे से काबिल एतराज़ मवाद भी बरामद किया है। और जो CRPF की टीम जो है मुख्तलिफ टीम्स बनाई गई और जो हमने मल्टीपल प्लेसेस पर रेड की, जिसमें जो है 6 लड़के वो उसमें पकड़े गए जो कि टेररिस्ट जो बनने वाले थे, विदिन जो है डे जो ज्वाइन करने वाले थे, ये मिलिटेंसी ज्वाइन करने, और उनको हमने पकड़ के प्रिवेंट कर दिया है उस चीज़ से कि वो टेररिज्म ना ज्वाइन कर पाए। फर्दर मोर कुछ 7 और OGW इसमें अरेस्ट किए गए हैं जो कि टेररिस्ट की जो है डिफरेंट सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर जो है जो एक्टिव टेररिस्ट हैं उनको जो है लॉजिस्टिक सपोर्ट्स या फिर जो है उनकी मूवमेंट में मदद करते हैं। तो एक जो है बड़ा एक मॉड्यूल ये जो है बस्ट किया है। ये जो है कम्प्लीटली अभी तो यहाँ पर ख़त्म नहीं, लेकिन हमारे एफर्ट्स हैं कि यहाँ पर मिलिटेंसी को ख़त्म किया जाए, जल्द ख़त्म किया जाए, और जो भी उनका जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है उसको भी साथ साथ में ख़त्म किया जाए। तो उस सिलसिले में जो है जो आप कह रहे हैं मिसिंग का जो है हमारे पास जो है करंटली सिर्फ 2 की रिपोर्ट्स है, और वो भी अभी अनकन्फर्म्ड है, उसमें हम वेरीफाई कर रहे हैं। लेकिन ये जो लड़के 6 जो हैं ये भी जो मिस होके जो मिलिटेंसी ज्वाइन करने वाले थे, इनको जो है पकड़ लिया गया। दैट इज वाई प्रिवेंट कर दिया गया इनको फ्रॉम। खारा भिलिसा के चोरा गांव में 22 अफराद का कोरोना टेस्ट मुस्बत पाया गया है। ऐसे में भिलिसा के देही इलाकों में कोरोना के बढ़ते केसेस पर तशवीश जाहिर की जा रही है। ये भी शिकायत की जा रही है कि इंतजामिया की मुसलसल हिदायत के बावजूद SOPs पर अमल नहीं किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि चंद रोज काबिल रैंडम सैंपलिंग की गई थी, जिनमें 42 मुस्बत आए हैं। महकमे सेहत के एहलकारों का कहना है कि लोग टेस्टिंग के लिए सामने नहीं आ रहे हैं। उन्होंने अलामात की सूरत में महकमे सेहत से राब्ता करने की तलकीन की है। रिपोर्ट किए गए हैं जोड़ा से, उनको जितनी भी बेसिक मेडिकेशन की ज़रूरत है वो उनको प्रोवाइड करें। साथ साथ में यहाँ पे हमारे खिताई चिनाब में रैपिड जो है कोरोना के टेस्ट जो है वो रैपिडली किए जाएं। 22 RT-PCR पॉजिटिव केसेस आए हैं, तो उसमें मैं आप सबसे हमने उन सबको मेडिसिन की किट्स विद पल्स ऑक्सीमीटर डिस्ट्रीब्यूट कर दी है और उनको होम आइसोलेशन में रखा हुआ है। हमारे एक पार्टिकुलर गांव में जो है इकट्ठे 20 से ज्यादा केसेस आए हैं। उस गांव को जो है अभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो डोडा जो है कंटेनमेंट जोन जो है डिक्लेयर कर रही है। लेकिन जो ही कोई बीमार होता है, कोई सिम्टम्स आते हैं, मेहरबानी करके उसको छुपाए ना, नजदीकी से नजदीक जो हेल्थ टीम है उसको कांटेक्ट करें, आपकी टेस्टिंग करवाई जाएगी और जो है आपकी केयर की जाएगी। जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन की वजह से सयाहती सनत से जुड़े अफराद काफ़ी मुतासर हुए हैं। ऐसे अफराद के लिए LG ने 3 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया था, ताहम सनत से जुड़े अफराद और ट्रेड लीडरान इसे नाकाफी करार दे रहे हैं। इनकी मांग है कि मुतासरीन को 1000 रुपए देने के बजाय एक मरबूत पैकेज की ज़रूरत है। पेश है हमारे चीफ करस्पॉन्डेंट परवेज भट्ट की ये रिपोर्ट। श्रीनगर में वाक़ शोरे आफाक डल झील में इन दिनों सन्नाटा छाया है। हाउस बोट खाली हैं और शिकारा भी रुके पड़े हैं। कश्मीर में गुज़िश्ता 3 बरसों के दौरान दिगर शोबों की तरह ही सयाहती सनत बुरी तरह मुतासिर हुई।
इन हालात में मुतासरीन को कुछ माली मदद फराहम करने की गरज से LG इंतजामिया ने 2,94,00,000 रुपए के पैकेज का ऐलान किया। पैकेज के तहत शिकारा वालों, टूरिस्ट गाइड्स, पोनी वालों और स्लेज वालों समेत कुल 14,627 इस्तेफादा कुनिंदगान को 2 माह तक माहाना 1,000 रुपए मिलेंगे। उधर सयाहत से जुड़े अफराद ने इस पैकेज को एक मजाक से ताबीर किया है। उनका कहना है कि माहाना 1,000 रुपए इंतहाई नाकाफी है। गवर्नमेंट ने 1,000 रुपया शिकारा वालों को दिया है, ये तो 3 दिन में खत्म हो जाता है। गरीब आदमी भी अगर सब्जी और रोटी खाएगा तो उसमें खत्म हो जाता है। सरकार ने देखो कि दाम क्या रखे हैं सब्जियों के बाजार में, बाकी जो सामान लाते उन चीज़ का क्या दाम है। पेट्रोल देखो कहाँ पहुँच गया, तो क्या करेगा एक आदमी 1,000 रुपये से। पिछले साल भी हमको 1,000 रुपया दे दिया है, मगर इस साल भी हम नहीं बसा, मगर उससे हमको कुछ फायदा नहीं होगा उससे, क्योंकि हमको पिछले साल से 2-3 साल से ऐसा ही पड़ा है। खासकर हम हमें शिकारवान हम पर ज्यादा असर पड़ता है, ये जो टूरिज्म के साथ है सब पर है बहुत बड़ा असर। उधर मुख्तलिफ तिजारती अंजुमनों और यूनियंस ने भी इस पैकेज की नुक्ताचीनी की है। टूर ऑपरेटर्स और हाउस बोट मालिकान की शिकायत है कि इन्हें इस पैकेज में नजरअंदाज किया गया है। ज्वाइंट टूरिज्म फोरम ने मुतासरीन को मौजूदा सूरत हाल से बाहर निकालने के लिए एक मरबूत और मुनज़्ज़म पैकेज पर जोर दिया है। इन्हें ये भी उम्मीद है कि जुलाई से सयाहती सनत कुछ हद तक वापस पटरी पर लौटेंगे। कि हमारी मैशत बिल्कुल तबाह हो चुकी है। ये एक जो अभी एक अनाउंसमेंट हुआ, मुझे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कहना चाहिए, मोहन सना साहब, कि आप देखिए आपने एक बहुत मजाक किया है बिजनेस कम्युनिटी के साथ। वो लोग वही हैं कि जो आपकी हुकूमतें चलाते हैं, जिनको आज आपने एक हकीर नजर से देखा। 3 करोड़ रुपया उनको खैरात के हवाले से दिया। अल्लाह करे कि ऐसा न होए हमारे साथ, हम इतने गिरे हुए नहीं हैं। सना साहब आप जरा देखिए, अल्लाह के लिए देखिए कि ये वही लोग हैं जिन्होंने इस रियासत को चलाया है। इससे पहले इस रियासत को चलाने वाले टूरिज्म इंडस्ट्री ही थी। तकरीबन 4,600 करोड़ रुपया हमने इन हालात में भी, जो आज के हालात हैं, इनमें भी हमने जीएसटी दिया हुआ है, और उसके हवाले से हमें क्या मिला। उन बेचारों को जिसके पास करोड़ों की संपत्ति होते, करोड़ों की प्रॉपर्टी होते, और जो कश्मीर एज ए टूरिज्म डेस्टिनेशन प्रमोट करने के लिए एक इम्पोर्टेंस रखता है, उसको 1,000 रुपए जब आप देते हैं तो आई बिलीव इट्स क्वाइट शेमफुल। हमारी जो डिमांड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से कि हमें एक बेल आउट पैकेज दिया जाए, सो दैट वील बी एबल टू रिवाइव। कि हालात ऐसे नहीं रहेंगे, कोविड टाइम्स, यू नो, these times are not going to last. This too shall pass. We are expecting tourism to open very soon, although we keep getting enquiries. Please, मेरे ख्याल से जुलाई से यहाँ पे टूरिज्म और एक बार शुरू हो जाना चाहिए। उसके लिए टूर ऑपरेटर को जो है बेल आउट की बहुत ज्यादा जरूरत। मुसलसल लॉकडाउन की वजह से कश्मीर की मईशत पर काफी मनफी असरात मुरतब हुए हैं। सिर्फ ताजिरों को ही जारी लॉकडाउन की वजह से तकरीबन 3,000 करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ है। इन मुश्किल हालात में ताजिरों को इंतजामिया से हर मुमकिन मदद की जरूरत है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए परवेज भट्ट की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 3 बरसों से ताजिरों और मेवा काश्तकारों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा है। उनका कहना है कि 370 की मनसूखी और कोविड लॉकडाउन ने उनकी कमर तोड़ कर रख दी है। उनका कहना कि उन्हें बैंकों के कर्जे और कारोबार से जुड़े दीगर मसाइल का सामना है। ताजिरों और फ्रूट ग्रोवर्स ने सरकार से माली मावनत का मुतालबा किया है। पैकेज हमारे लिए एज सून एज पॉसिबल अनाउंस करना चाहिए, ताकि ये बिजनेस हाउसेस फिर से उठे और फिर से हम सरकारी डेवलपमेंटल वर्क्स में अपना ताउन दे सके। इसके लिए हम LG गवर्नमेंट से और यूनियन मिनिस्ट्री से अपील करते हैं कि कश्मीर के स्पेशली, बिकॉज कश्मीर तीसरे लॉकडाउन में अभी चल रहा है, तो स्पेशली हमारे लिए एक कम्प्रहेंसिव बिजनेस रिवाइवल पैकेज अनाउंस करे और हमारे बिजनेस हाउसेस को फिर से काम करने के लिए तैयार करें। गवर्नर हजरात से ये इल्तिमास की कि यहाँ के ताजरों को कुछ मुराद दिए जाए, जो बैंकों के लोन है उसके लिए राहत दी जाए। ताजरों की मैशत जो खराब हो गई है और उनको राहत देने के लिए सरकार को कुछ न कुछ इक़दाम उठाने चाहिए। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर बीजेपी ने रिश्वत सतानी और धोखाधड़ी के इल्जामात पर पार्टी के जिला अनंतनाग के जनरल सेक्रेटरी व सरपंच निसार अहमद खान को पार्टी की बुनियादी रुकनियत से खारिज कर दिया है।
पार्टी के नायब सदर सूफी मोहम्मद यूसुफ के मुताबिक पार्टी ने यह फैसला तब किया जब निसार को गुज़श्ता रोज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक पुलिस की जानिब से मिलिटेंसी से मुंसलिक एक केस की तहक़ीक़ात के सिलसिले में कोकरनाग इलाके के 2 अफराद को तलब किया गया था। उसके बाद निसार खान ने उनकी रिहाई मुमकिन बनाने के लिए दोनों अफराद के घर वालों से 1,10,000 रुपये वसूल किए। अगरचे दोनों अफराद को पुलिस ने बाद में रिहा किया, लेकिन घर वालों की शिकायत के बाद निसार खान को पुलिस ने गिरफ्तार करके उसके खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर केस दर्ज करके मज़ीद तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। खान साहब का जो सरपंच भी है, पार्टी का जनरल सेक्रेटरी भी था डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग का, उसने कहीं करप्शन किया है, उसके खिलाफ एफआईआर लॉन्च किया गया है। जब तक ये सच्चाई सामने नहीं आएगी, कोर्ट इसका फैसला नहीं करेगा, तब तक हमने अपने रविंद्र रैना जी को ये बात पहुंचाई, उन्होंने सेंटर तक बात पहुंचाई और पार्टी ने, संगठन ने उसको एक्सपेल किया है। 21 मई को दरिया जहलम में डूब गए एक 17 साला नौजवान की लाश आज बरामद कर ली गई है। नूरबाग श्रीनगर के गुजरवल इलाके से एक लाश बरामद कर ली गई। इसकी शनाख्त छतबल के मोमिन अहमद डार के तौर पर हुई है। वो वीर इलाके में फिसल कर दरिया में गिर गए थे। इसकी लाश निकालने के लिए 6 रोज तक ऑपरेशन जारी रहा। 11वीं जमात के तालिबे इल्म मोमिन की लाश बाद में लवाहिकीन के हवाले की गई। जम्मू कश्मीर में कोरोना के बढ़ते केसेस के चलते अस्पतालों में बेड्स की काफ़ी कम मांग है। इसके बावजूद जम्मू में ज़ेर तामीर 500 बेड वाले डीआरडीओ अस्पताल को मुकम्मल करने की डेडलाइन गुजर गई है। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक इस अस्पताल को 25 मई तक मुकम्मल करना था, ताहम अस्पताल इस डेडलाइन के अंदर मुकम्मल नहीं हो पाया है। मकामी लोगों का कहना है कि उन्हें इस अस्पताल से काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता थीं। इसके मुकम्मल होने से अस्पतालों में बेड्स की कमी का मसला काफ़ी हद तक हल हो सकता है। अस्पताल के वक्त पर मुकम्मल न होने से लोगों में काफ़ी मायूसी है। उनका कहना है कि इस काम को जल्द से जल्द मुकम्मल करके सरकारी अस्पतालों के बोझ को कुछ कम किया जाए। तरफ से जो उनको 500 बेड का जो इशू हुए थे, वो उसको उन्होंने 25 या 26 मई को रेडी करना था, वो अभी तक रेडी नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ रेडी, क्या रीज़न थे, हमें रीज़न नहीं जानने हैं, क्योंकि इस टाइम पे जो हमारी स्टेट की कंडीशन है बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो चुकी है। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल वो रेडी किया जाए। हम पहला युद्ध ये देख रहे हैं जो इतनी लापरवाही से लड़ा जा रहा है। बाकी क्या इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है? मैं हाथ जोड़ के अपने जम्मू की एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इतनी लापरवाही मत दिखाइए, क्योंकि ये लापरवाही जो है, आपकी लापरवाही लोगों को जान दे के चुकानी पड़ रही है। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और तनाजात का चोली दामन का साथ है। एसएमसी ओहदेदारों और कारपोरेटर्स के बीच एक और तनाजा सामने आया। मेयर जुनैद बट्टू, डिप्टी मेयर और दीगर कारपोरेटर्स ने एक दिन की भूख हड़ताल की। कारपोरेशन के जॉइंट कमिश्नर प्लानिंग के खिलाफ भूख हड़ताल की गई है। मेयर ने जॉइंट कमिश्नर प्लानिंग पर बदनवानी और बेज़ाब्तियों के संगीन इल्जामात लगाए हैं। कारपोरेटर्स ने मुतल्लिक़ अफसर को फौरी तौर पर हटाने की मांग की है। साल से पिछले कमिश्नरों ने भी उसके ऑफिस सीज किए, तब जब एक्टिंग मेयर थे उन्हें भी ऑफिस सीज किए। कॉरपोरेटरों ने भी बार बार सरकार से इल्तिजा की कि ये जो रिश्वतखोर एक हमारे अफसर हैं, जिनने शहर के गुरबात को भी नहीं छोड़ा है, जो यहाँ पे हमारे दफ्तर में औरतें बुजुर्ग रो रही होती हैं, जिनको 1-1 साल तक परमिशन रिश्वत देने के बगैर नहीं मिलता है, लेकिन सरमायादार को परमिशन मिलता है। और एक ढकोसला बनाया गया कि ये इंसान ईमानदार है। ईमानदारी के फरेब के पीछे इस बंदे ने इस शहर पे इतने। महकमे सेहत कश्मीर के डायरेक्टर जी नीतू ने कहा कि सनत से जुड़े अफराद की 100% वैक्सीनेशन जल्द मुकम्मल होगी। इतो ने डल झील में वैक्सीनेशन की अहमियत के हवाले से बेदारी मुहिम में हिस्सा लिया। इतो ने हाउस बोट मालिकान, शिकारा वालों और दीगर मुताल्लिकीन से बात की और उन्हें वैक्सीन लगवाने की तलकीन की। उन्होंने वैक्सीनेशन में मुहिम में सेहती सेक्टर को तरजीह में रखने पर एलजी इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया।
ड्राइव हुआ है 45 प्लस, हमारा 100% जो है जितने टूरिज्म से जुड़े हुए लोग थे उनका हो गया है, लेकिन 18 प्लस के जितने लोग हैं अभी हमारे पास 2 दिन बचे, आज का दिन और कल दिन बचा है 4 डिस्ट्रिक्ट्स में। हमारी पूरी उम्मीद है कि हमारा 100% जो है कवरेज हो जाएगा। इसके लिए मैंने आज स्टेक होल्डर्स को अपील करी है कि वो अपनी कोऑपरेशन दे दे और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो पूरा इसका भरपूर फ़ायदा उठाए और आगे आने वाले दिनों में जब इंशाल्लाह टूरिज़्म का दोबारा से बोलबाला होगा, दोबारा से टूरिज़्म पीक पे जाएगा तो उस वक्त जो है ये चीज़ें उनके काम आएंगी। इसमें उनकी सेफ्टी है, उनकी फैमिली की सेफ्टी है, टूरिस्ट्स की सेफ्टी है और मैं यही अपील उनको करूँगा कि वो इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा करके वैक्सीनेशन जल्द अज जल्द करें। गुलमर्ग में सेहत से जुड़े लोगों में कोविड टीकाकारी का अमल जारी है। महकमे सेहत ने गुलमर्ग और टंगमर्ग में होटलों के मुलाजमीन, टूरिस्ट गाइड्स और घोड़े वालों और दीगर लोगों को तरजीही बुनियादों पर वैक्सीन लगवाया है। महकमे सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 2 रोज से गुलमर्ग में 1000 के करीब लोगों को वैक्सीन लगाया गया है। गुर वालन गाइडन वाइडन तमाम वैक्सीन असल पे शुक्रगुजार PH पर गुलमर्ग पर। 2 दिन से यहाँ गुलमर्ग में वैक्सीनेशन चल रही है। हमने भी आज किया है, यहाँ टूरिस्ट गाइडों ने भी किया है, घोड़े वालों ने भी किया, होटलों में जब काम कर रहे हैं उन्होंने भी किया है। मोर देन 800 जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनकी वैक्सीनेशन हुई है, तो जो आज तीसरे दिन भी जारी है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो हमारे पेंडिंग जो इसमें थे कुछ लोग तो वो हम कल तक कंप्लीट करेंगे। आपकी वसातत से अपील करते हैं कि वो हमारे जो सेंटर्स एस्टेब्लिश हुए हैं इस सिलसिले के लिए तो वो वहाँ हाजिर होकर वो वैक्सीन अपना करें। बिरवा के बनहामा, पुंछ, गुंड और दीगर इलाकों में तहसीलदार बिरवा और SHO बिरवा की सरबराही में इंतजामिया और पुलिस की टीम ने 10 कनाल के करीब अराजी पर गैर कानूनी तौर पर उगाई गई खसखस की फसल को तबाह किया। मुलविस अफराद के खिलाफ पुलिस स्टेशन बिरवा में केस भी दर्ज किया गया है। बिरवा में बेशतर मकामात पर लोगों ने गैर कानूनी तौर पर खसखस की पैदावार की है। यहाँ पर बनहामा में लगभग 5 कनाल के करीब है और हमने इस ज़मीन में ऑलरेडी पुलिस को FIR के लिए लिखा है, तो इनके खिलाफ इंशाल्लाह कानूनी कार्रवाई की जाएगी और ये हम इस वक्त डिस्ट्रॉय कर रहे हैं ताकि ये जो है पोस्ट ये तबाह हो जाए और ये जो लोग हैं जो ये गैर कानूनी काम करते हैं और इनके खिलाफ इंशाल्लाह कार्रवाई भी होगी। बानीपुरा में तमाम पंचायती हलकों में कोविड केयर सेंटर कायम करने का सिलसिला जारी है। इन मराकज़ का दौरा करने के दौरान DC डॉक्टर अवैस का कहना था कि जिले के 151 पंचायत हलकों में ये मराकज़ कायम किए जा रहे हैं। DC के मुताबिक कुछ जगहों पर ये मराकज़ पहले से मौजूदा सेहत मराकज़ में कायम किए जा रहे हैं। लोगों ने कोविड केयर सेंटर कायम करने पर मसरत का इजहार किया। ये पे बांडी पोरा तम पे लिफ्ट ढूंढन वक्त बना वक्त बना वो DC सबन इनायत कर ये त्रोवन कोविड सेंटर फिलहाल कह गरीब कह तवकत कह बांडपुर लिफ्ट ढूंढित पे नीत ये गई सहूलियत आई। बाकी जो हमारे 151 पंचायत हैं लगभग 755 बेड्स उसमें ऐड किए जा रहे हैं और अभी तक हमारा आज इस वक्त की बात करूंगा तो 40% पंचायत में ये हो चुका है और रेस्ट जो पंचायत हैं आज हमारा शाम तक लगभग 70% पंचायत में हो जाएगा और कल हम उम्मीद कर रहे हैं कि सारी पंचायतों में ये पूरी तरह से। कश्मीर न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। जम्मू के वेयर हाउस मार्केट में ट्रेडर्स फेडरेशन ने वार रूम्स कायम किए हैं। कोरोना वबा के दौरान ज़रूरतमंदों को ऑक्सीजन, अद्वियात, राशन और दीगर मदद फराहम करने के लिए ये इक़दाम किया गया है। पेश जम्मू से समीर भट्ट की ये रिपोर्ट। कोरोना और लॉकडाउन के बीच मुख्तलिफ लोग और इदारे लोगों की मदद के लिए सामने आए हैं। जम्मू में ताजिरों ने भी इस मुश्किल दौर में जरूरतमंदों की मदद करने की पहल की है। जम्मू के वेयर हाउस मार्केट में ट्रेडर्स फेडरेशन ने 3 वॉर रूम कायम किए हैं। यहाँ 120 ऑक्सीजन सिलेंडर दस्तयाब हैं, 5 बाईपैप मशीनें, 5 वेंटिलेटर और दिगर सहूलियात भी मैसर रखी गई हैं। मुंतजमीन का कहना है कि कोविड मरीजों को हर चीज मुफ्त में फराहम की जा रही है। होम डिलीवरी की सहूलत भी फराहम की जा रही है। कोविड-19 की जो सेकंड वेव जो जिस तरह से पूरे भारतवर्ष में जम्मू प्रोविंस में इसका असर दिखने को मिल रहा है, तो उसी के तहत हमने
हमारे सीनियर मेंबर और मेरे ऑफिस बीरर के आदेश अनुसार ये काम शुरू किया है। छोटी सी पहल जो है हमारी फेडरेशन ने की है, हमारे सीनियर मेंबर और उसके आदेश अनुसार वो काम जो है जनता तक पहुंचाया जा रहा है और मुझे लगता है इससे काफ़ी लोगों को जो है राहत मिल रही है। एक वॉर रूम राशन और एक अद्वियात के लिए भी मुख्तस रखा गया है। वॉर रूम मेंबरान का कहना है कि राशन और अद्वियात भी मुफ्त फराहम की जा रही हैं। हर वॉर रूम से राब्ता करने के लिए 6 नंबरात दिए गए हैं। लोगों ने इस इक़दाम पर ताजिरों की सताइश की है। कोई गरीब से गरीब तक ये सप्लाई पहुंच जाए। सर जिस तरह से इन्होंने नंबर भी दिए हैं, क्या कहेंगे? सर वो तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव, इन्होंने एक टीम बनाई, टीम के अंदर इन्होंने 6 बंदों के एक पर टीम बना लिया। तो जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो 6 बंदों से कांटेक्ट करके कभी भी 24 आवर्स कांटेक्ट कर सकते हैं। दे विल गेट व्हाटएवर दे नीड। हर आदमी के लिए फ़ायदेमंद है, जो बाहर से आएगा उसके लिए भी है, जो इधर के मुलाजिम हैं या कि शौकदार हैं उनको भी फ़ायदा होगा। किसी को भी इमरजेंसी कोई भी फैसिलिटी चाहिए, दवाई की या कोई उसको फर्स्ट एड चाहिए या कुछ भी चाहिए तो सब कुछ हर चीज़ मिलेगी, ऐसी बात नहीं है। वेयर हाउस के ताजिरीन की ये पहल काबिल सताइश है। मौजूदा हालात में इस तरह के मजीद इक़दामात की ज़रूरत है। दिगर लोगों को भी इस मुश्किल वक्त में इंतजामिया का बोझ कम करने के लिए आगे आना चाहिए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। B1 100% आयुर्वेदिक एनर्जी और इम्यूनिटी सप्लीमेंट पेश करते हैं आज की सुर्खियां। कौनबू श्रीनगर में कायम एक निजी तालीमी इदारे के मालिक ने अपने कॉलेज को कोविड अस्पताल में तब्दील किया है। 40 बिस्तरों पर मुश्तमिल इस कोविड अस्पताल में तमाम सहूलियात मैसर हैं। इदारे के मालिक मोहम्मद अनवर खान का कहना है कि ज़रूरत पड़ने पर बेड्स की तादाद 150 तक बढ़ाई जा सकती है। अनवर ने ज़िला इंतज़ामिया से दरख्वास्त की है कि वो इस अस्पताल और उनकी खिदमात को मुफ्त में इस्तेमाल कर सकते हैं। तरीके से कर रही है, मगर एज ए कश्मीरी मैंने भी सोचा कि मुझे भी अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। देखो जो आपने देखा अभी तक मैंने 40 बेडों की फैसिलिटी मेरे पास बिल्कुल रेडी है यहाँ पे, जिसमें ऑक्सीजन फैसिलिटी भी है और बाकी मेडिसिन जो इस बीमारी में चाहिए वो भी मेरे पास है। और ट्रेन जो इसमें हमें पैरामेडिकल स्टाफ चाहिए MSc BSc मेरे पास है। और सबसे अच्छी बात है मेरे यहाँ से जो पास आउट हुए हैं, जो डिग्री जिन्होंने हासिल की है, वो बच्चे भी वॉलंटरी काम करने के लिए तैयार है। और मैंने गवर्नमेंट को ये भी बता दिया है अपने DC श्रीनगर को कि अगर और भी कहीं स्टाफ की आपको जरूरत है, ट्रेन मैन पावर जो आपको चाहिए वो भी मैं इंशाल्लाह उनको प्रोवाइड करने के लिए हमारे बच्चे तैयार हैं, वॉलंटरी वो काम करने के लिए तैयार है। वॉलंटियर मेडिकेयर सोसाइटी नामी रजाकार तंजीम ने कुपवाड़ा के मुख्तलिफ इलाकों में गरीब खानदानों और जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद के घर जाकर उनमें राशन किट्स तकसीम की। कोविड के इस दौर में गरीब और जिस्मानी तौर नाखिज अफराद घरों से बाहर नहीं निकल सकते हैं। ऐसे में तंजीम ने यह पहल की है। अवाम ने सोसाइटी के इस इक़दाम की सताइश की है। मरकजी जामा मस्जिद त्रेहगाम के इमाम ने इस रजाकार तंजीम के काम की सराहना करते हुए कहा कि लोगों को गरीब और मुस्तहक अफराद की मदद के लिए आगे आना चाहिए। वॉलंटियर मेडिकेयर सोसाइटी ने बहुत ही अच्छा इक़दाम उठाया कि उन्होंने किट्स लाए जिनमें तेल, चावल और दीगर अशिया थी गरीब गुरबात के लिए। तो मैं ज़ाती तौर उनके साथ रहा और उन्होंने यहाँ पर उन अफराद में बांट लिया। उनके पास फ़हरिस्त भी मौजूद थी उन अफराद के पास जो मुस्तहिक थे। LG मनोज सिन्हा ने चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम के हमरा GMC और AH राजौरी का दौरा किया। LG ने GMC राजौरी में कोरोना को लेकर तमाम तैयारियों का जायजा लिया। LG ने अस्पताल के अमले से मुलाकात की और मौजूदा सूरत हाल की तफसीली जानकारी ली। LG ने GMC के एक इमरजेंसी वार्डों का दौरा किया और मरीजों की खैरियत दरियाफ्त की। सिन्हा ने हिदायत दी कि मरीजों की हर मुमकिन मदद की जाए। वो आए, उन्होंने बिल्कुल डायरेक्ट पेशेंट के पास चले गए, उन्होंने पूरा खुद पर्सनली पूछा हालात, तो इसने खुद जवाब भी दिया उनको, पहले से बेहतर है ये फील कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा। हमें जो उनका आशीर्वाद मिला, हमें जो
उन्होंने वे आउट बताया कैसे करना है, और उसके लिए स्टाफ के लिए भी फॉर द पेशेंट के लिए भी बहुत बेनिफिट होगा। ऊपर स्टाफ है उन सबसे मुलाकात की, तो यही उन्होंने बोला कि कोशिश करो कि उनको वेंटिलेटर पर डालो। वेंटिलेटर पर हमारा स्टाफ डालना चाहते हैं, पेशेंट लेकर देता है कि हमने वेंटिलेटर पर नहीं जाना। जीएमसी राजौरी के दौरे पर पहुंचे एलजी मनोज सिन्हा ने पैरामेडिकल स्टाफ के कामों को सराहा। उन्होंने जीएमसी में खिदमत अंजाम दे रहे तिब्बी अमले से मुलाकात की। सिन्हा ने कहा कि हेल्थ वर्कर्स दिन रात अस्पतालों में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अस्पताल अमला भी एलजी से मुलाकात के लिए पुरजोश नजर आया। मैं यही कहना चाहूँगा, हमें बहुत अच्छा लगा, उन्होंने इंटरेक्ट किया है स्टाफ के साथ। तो इस सिचुएशन में जो इस वक्त एक ऐसी सूरत हाल बन चुकी है, इससे एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलता है स्टाफ को भी, पेशेंट को भी, और हमें बहुत अच्छा लगा है। हमारे साथ भी मिले और बहुत ही हमारी हौसला अफजाई हुई है, क्योंकि इस दौर में जो पैराडोमिक एक टाइम चल रहा है, इतना खतरनाक और क्रूशियल टाइम चल रहा है, उन्होंने हमारी हौसला अफजाई की है, क्योंकि उन्होंने यही बोला कि 24/7 जो हम काम कर रहे हैं उसमें उन्होंने हमारी बड़ी हौसला अफजाई की है। एलजी मनोज सिन्हा ने रियासी में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने आवाम को पहुंचाई जा रही कोरोना सहूलियात का जायजा लिया। सिन्हा ने जिला भर में कोरोना कंटेनमेंट इक़दाम का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल इंतजामिया से कहा कि वो कोरोना मरीजों के लिए बेहतर सहूलियात को यकीनी बनाए। एलजी ने जिला भर में ऑक्सीजन बेड्स, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, टेस्टिंग और वैक्सीनेशन ड्राइव के बारे में भी जानकारी हासिल की। जिला उधमपुर में अब तक रजिस्टर्ड मजदूरों के खातों में 1 करोड़ 20 लाख रुपए की रकम मुंतकिल की गई है। एलजी की हिदायत पर 13,500 वर्कर्स को ये इमदाद दी गई है। असिस्टेंट लेबर कमिश्नर उधमपुर ने कहा कि मजदूरों को माहाना 1,000 रुपए दिए गए हैं। मई की रकम वागजार की गई है और जल्द ही जून की रकम वागजार की जाएगी। गवर्नर मनोज सिन्हा जी की हमें हिदायतें हुई हैं कि जितने भी रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनको 1,000 रुपए के हिसाब से आपने 2 महीने की किस्तें डालनी हैं। मई की किस्त हमने डीबीटी मोड से उनके अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दी हैं। अब जैसे ही जून की किस्त आती है तो हम उनके अकाउंट में डिप्टी कमिश्नर बडगाम शहबाज अहमद ने एसडीएम चाडोरा और बीएमओ चाडोरा के हमरा बच्चों के लिए कोविड केयर अस्पताल का इफ्तिताह किया। एसडीएच निगम चाडोरा में लेवल 2 के 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल बच्चों के कोविड केयर का इफ्तिताह किया। डीसी ने एनजीओ K4 के तारीफ की। एनजीओ K4 ने मज़कूरा अस्पताल में 18 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मुहैया कराए हैं। जिला भंज में पंचायत सतह पर एलजी की हिदायत के बाद डीसी इंद्रजीत की निगरानी में कोविड सेंटर्स के लिए कोरोना किट तकसीम की गई। इस किट में ऑक्सीमीटर, N95 मास्क, सैनिटाइजर और टेस्टिंग किट शामिल हैं। इंचार्ज अनवर खान ने बताया कि जिले के सभी 229 पंचायतों के स्कूलों में 5 बिस्तरों पर मुश्तमिल कोविड केयर सेंटर कायम किए जा चुके हैं। जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा बसीरुल हक चौधरी ने कहा कि जिले में कोविड सूरत हाल से निपटने के लिए महकमे सेहत काबिल सताइश काम अंजाम दे रहा है। डीसी ने कहा कि कोरोना मुतासरा मरीजों में सिर्फ 2% मरीजों को ही श्रीनगर मुंतकिल किया जाता है। डीसी ने महकमे सेहत के फ्रंट लाइन वर्कर्स में क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने वाली अद्वियात तकसीम की। Pulwama is the only district and Pulwama district hospital is the only district hospital जहाँ पे रिटेंशन जो रेट है वो 98% है। मीन के अगर यहाँ पे कोविड के 100 पेशेंट आ रहे हैं तो उसमें से 2 ही पेशेंट को रेफर करते हैं, वो भी एक्सट्रीम केसेस पे डॉक्टरों की एक टीम है जो पहले कंसल्ट करती है, आगे जितने भी हमारे हॉस्पिटल से, बड़े हॉस्पिटल से, उनके साथ कोऑर्डिनेट करके फिर ही हम उसको जो है वो शिफ्ट करते हैं। 98% जो हमारे पास यहाँ पे रिटेंशन है वो यहीं पे है। उसके साथ साथ जो हमारा रिकवरी रेट है वो आज की डेट में जो है वो 85 से 90% है। इट्स ऑल बिकॉज डिप्टी कमिश्नर बडगाम शहबाज अहमद ने आइंदा दिनों में सेहतियाबी की शरह में इजाफा होने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि पॉजिटिविटी शरह में कमी आ रही है और हालात में मुसलसल बेहतरी आ रही है। रेड जोन में 58% से ज्यादा मरीज शिफायाब हो चुके हैं। वो भी थोड़ी कम हुई है। इससे पहले करीबन 18% बेड ऑक्यूपेंसी थी, लेकिन वो अब घट के 16.93% हुई। रेड जोन से बाहर जो पॉजिटिविटी है वो भी 58% है अभी, तो उस पर हम नज़र रखे हुए हैं कि रेड जोन से बाहर केसेस जो हैं और कम हों। उसके लिए एग्रेसिव टेस्टिंग अभी भी चल रही है और किसी और एरिया को रेड जोन डिक्लेयर करने की ज़रूरत हुई तो वो भी करेंगे, उस पर भी हमने नज़र रखी है।
ضلع ترقیاتی کمشنر مسرت الاسلام نے کہا کہ ضلع میں 45 سال سے زائد عمر کے افراد کو کورونا ٹیکہ لگایا گیا ہے۔ ڈی سی نے کہا کہ 18 سے 45 سال کی عمر کے افراد کی ویکسینیشن کے لیے تمام انتظامات مکمل کیے جا چکے ہیں۔ جرنلسٹ ہیں ان سبوں کی لسٹ ہم کنسولیڈیٹ کر رہے ہیں۔ ابھی فی الحال 8 ڈسٹرکٹس میں 18 سے 44 کی جو کیٹیگری ہے اس کو پرائورٹائز کیا ہے، اور جب ڈسٹرکٹ رامبن کا نمبر لگے گا تو ہم امیڈیٹلی اس کیٹیگری کی بھی ویکسینیشن جو ہے وہ فرسٹ ڈوز کی شروع کر دیں گے۔ ہمیں پوری امید ہے کہ اس والی کیٹیگری میں ہمارے سیشن سائٹس پہ بہت رش رہے گا۔ ہمیں بہت ساری کالز آتی ہیں ان یوتھ کی۔ خطہ چناب سے تعلق رکھنے والے معروف ادیب رسا جاودانی کو آج ان کی 42ویں برسی کے موقع پر یاد کیا گیا۔ رسا جاودانی میموریل لٹریری سوسائٹی نے ایک آن لائن تقریب منعقد کر کے مرحوم کو خراج عقیدت پیش کیا۔ کئی سرکردہ شخصیات نے مرحوم کی خدمات کو یاد کیا۔ زبان کو اگر کسی شاعر نے پورے فنی محاسن کے ساتھ غزل دی تو وہ رسا جاودانی تھی۔ رسا جاودانی کی شاعری کوئی ضرورت آج کے دور میں اس لیے بھی بہت زیادہ ہے کیونکہ افراتفری کے عالم کے اس دور میں رسا کی شاعری محبت، امن اور آپسی بھائی چارے کا پیغام دیتی ہے۔ رسا جاودانی خطہ چناب کے ہی نہیں بلکہ بر صغیر کے ایک مقتدر اور سربراوردہ شاعر وہ گزرے ہیں۔ ان کی اردو شاعری بہت مقبول رہی، لیکن اس سے زیادہ ان کی کشمیری شاعری ہے جس کی بنا پر انہیں رسول میر ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ ہم سب انہیں یاد کرتے ہیں اور آج ان کی یوم وفات ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام حاصل کرے، اور ان کے لاحقین کو اس بات کی خوشی ہونی چاہیے کہ رسا جاودانی آج بھی زندہ ہے، اپنی شعر و شاعری میں ادب کے حوالے سے زندہ ہے اور زندہ رہیں گے۔ آج ملک بھر میں پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو کی 57ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ جموں کشمیر میں سابق وزیر اعظم کو کانگریس پارٹی نے خراج عقیدت پیش کیا۔ جموں میں واقع پارٹی ہیڈ کوارٹر اعلیٰ لیڈران اور کارکنوں نے پنڈت جواہر لال نہرو کو یاد کیا۔ کانگریس لیڈران نے کہا کہ ملک کی ترقی میں پنڈت نہرو کا کردار نمایاں ہے۔ لاک ڈاؤن ہو، کرونا کے بیماری کے سلسلے میں جو جنگ میں ہم سب لوگ یہاں پہ شامل ہیں، سمپل طور پہ، سمبولک طور پہ ہم ان کو شردا کے سمن ارپت کرتے ہیں۔ آج ان کے سوچ کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ہر جگہ پہ ان کی سوچ کو اگر ہم آگے بڑھائیں تو شاید یہ واتاورن جو آج جس ڈھنگ سے بھارت ورش میں پوری مہاماری کرونا کے سلسلے میں یہاں لگ رہی، ایسا جلدی سے ہم اس کا چھٹکارا یہاں پہ دلا پائیں۔ اور میں یہی اپنے سارے ساتھی جو کانگریس کے سارے ساتھی ہیں کہ لوگوں کے بیچ میں جا کے آج کے اس ماحول میں بھی لوگوں کی دشواریوں کو سنیں اور ان کا سمادھان کرنے کے لیے سرکار کو مجبور یہاں پہ کریں۔ اگر سرکار کا دھیان اس کی طرف آکرشت یہاں پہ ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں ہماری طرف سے سچی۔ بھدرواہ کے سرپنچوں کے گروپ نے الزام لگایا کہ نومنتخب ڈی ڈی سی چیئرمین کی نااہلی اور آر ڈی ڈی حکام کی لالفی تشاہی کی وجہ سے غریبوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے الزام لگاتے ہوئے کہا کہ آر ڈی ڈی انتظامیہ اور نومنتخب ڈی ڈی سی چیئرمین ڈوڈا غیر پیشہ ورانہ عدم دلچسپی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ آپ کے پاس جو ہے نریگا کا پلان اپرووڈ نہیں ہے، تو یہ ساری گزارشات تھی ہم لوگوں کی طرف سے، جو ہم چاہتے تھے کہ یہ آپ کے تھرو جو ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ڈائریکٹریٹ اور آگے چلی جائے، تاکہ اس پہ جو ہے ہمیں فیڈ بیک ملے، ہمیں اس میں فیوریبل ریزلٹس ملے، تاکہ ہمارے لوگ جو پسماندہ ہے، جو پریشان ہے، جو پنچایتوں کے اندر ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ کب پلان اپروول ہوں گے، یہ کام کریں گے، ہم ان کے لیے جو ہے وہ راہ ہموار کر سکیں۔ لداخ بدھسٹ ایسوسی ایشن نے لیہ میں بدھ پورنیما عقیدت و احترام اور سادگی سے منائی۔ چوکاہان وہار میں کووڈ ایس او پیز کے تحت یہ تہوار منایا گیا۔ اس دوران کووڈ سے نجات اور امن و خوشحالی کے لیے خاص دعائیں کی گئیں۔ عقیدت مندوں نے کہا کہ مہاتما بدھا کی تعلیمات پر عمل کرنے سے دنیا بھر میں امن و بھائی چارے کا ماحول قائم ہو سکتا ہے۔ ایڈمنسٹریشن اور گورنمنٹ کی طرف سے جو ایس او پی جاری کیا ہے اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے لداخ میں بھی ہم نے لداخ بدھسٹ ایسوسی ایشن اور گنپا ایسوسی ایشن کی طرف سے بہت مختصر طریقے سے، سمبولک طریقے سے ہم نے اس دن کو منانے کا فیصلہ کیا۔
पुंछ जिले में एलओसी पर वाक़ कृष्णा घाटी नामी इलाके में वाक़ पांडवों के ज़माने के लोहार देवता मंदिर में बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर यज्ञ का एहतमाम किया गया। आर्मी की इन्फेंट्री ब्रिगेड के कमांडर, 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांडर, बीएसएफ कमांडर और एलओसी पर तैनात आर्मी यूनिट्स के सीओज शामिल हुए। मुल्क में अमन और कोरोना से निजात की दुआएं की गई। काबिल जिक्र है कि जिस इलाके में एक कदीम मंदिर वाक़ है, इसके अतराफ मुसलमानों की मुस्लिम आबादी है। यहाँ की मुस्लिम आबादी खुद ही मंदिर की देखभाल करती है, साथ ही यहाँ मुनक़िद होने वाली मजहबी तक़रीबात में भी हिस्सा लेती है। यहाँ हर धर्म के माने देखिए पूरी तरह से बॉर्डर पे स्थान है और ये मुस्लिम आबादी के बीच में स्थान है। उसके बावजूद यहाँ मुस्लिम भाइयों का इस स्थान के साथ उनका भी बहुत बड़ा हिस्सा है। हम दुआ करते हैं कि जितने लोग यहाँ पे आए या आज यहाँ आए, इन सब की मुरादें पूरी हों और हर साल की तरह ये जो परंपरा है यहाँ इस बुद्ध पूर्णिमा के दिन पे इसे लोग आगे ले जाते रहें, मन को शांति हो, प्यार हो, आपस में। डीसी करगिल संतोष सुखदेव ने सिनको और शिखर चट्टान के कई तिब्बी मराकज़ का दौरा किया। उन्होंने कोविड से निपटने और इस सिलसिले में किए गए दीगर इंतजामात का जायजा लिया। डीसी ने एनटीपीएचसी तंबस और मेडिकल सब सेंटर के अलावा गोंड मंगलपुर में ज़ेर तामीर 20 बिस्तरों के खुसूसी अस्पताल का भी दौरा किया। हेल्थ वर्कर्स से बात के दौरान उन्होंने वैक्सीनेशन मुहिम, टेस्टिंग की सहूलियात और दीगर उमूर से मुताल्लिक़ जानकारी हासिल की। चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर LHDC करगिल फेरोज अहमद खान ने मुख्तलिफ महकमों का इजलास तलब किया। उन्होंने PWD, महकमे देही तरक्यात, कैपेक्स बजट, SDP के अलावा लैंग्वेज स्टेट UT प्लान के तहत मुख्तलिफ मनसूबों और स्कीमों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। CEC ने अफसरान को हिदायत दी कि वो मुख्तलिफ इलाकों खुसूसन गरकोन सुद गरगरदू में बिला खलल पानी की फराहमी को यकीनी बनाएं। उन्होंने तालीमी इदारों के करीब ही लाइब्रेरियों की तामीर के इम्कानात तलाश करने की हिदायत दी। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 2769 नए मुस्बत केस सामने आए हैं। जम्मू से 964 जबकि कश्मीर से 1805 नए केस सामने आए। 4352 कोविड मरीज सेहतयाब हुए हैं। जम्मू से 1760 जबकि कश्मीर में 2592 कोविड मरीज सेहतयाब हुए हैं। कोविड से मजीद 37 मरीजों की मौत हुई है। जम्मू में 24 और कश्मीर में 13 मरीजों की मौत हुई है। जम्मू कश्मीर में कोविड से कुल 13,739 मरीजों की मौत वाक़ हुई है। महकमा एग्रीकल्चर की तरफ से जिला रामबन के बुजला इलाके में जमींदारों के लिए एक कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप की इस्तदारत चीफ एग्रीकल्चर अफसर रामबन फारूक अहमद भट्ट ने की। बुजला इलाके में तजुर्बाती तौर पर की गई मटर की काश्त पर जमींदारों की काविशों की पजीराई की गई। भट्ट ने बताया कि इन इलाकों में लोग साल में एक बार सिर्फ मकई की काश्त करते थे। अब महकमे की तरफ से उठाए गए इक़दाम से लोगों को फायदा हो रहा है। तराल में मामूली उजरत पर काम कर रही हेल्पर्स और सुपरवाइजर्स 3 सालों से तनख्वाहों से महरूम हैं। इनका कहना है कि पैसे न होने की वजह से इनके अहलखाना फाककशी पर मजबूर हो गए हैं। उन्होंने महकमे के डायरेक्टर से तनख्वाह जल्द वागजार करने की मांग की है। कोर्ट कॉम्प्लेक्स मागाम में कोविड स्पेशल वैक्सीनेशन ड्राइव का एहतमाम किया गया। अदालत में काम कर रहे मुलाजमीन, वकला और दीगर लोगों को कोविड का टीका लगाया गया। अवंतीपुरा में म्यूनिसिपल कमेटी ने आवाम को तामीराती कामों को बंद करने की अपील की। म्यूनिसिपल एहलकार की जानिब से लाउड स्पीकरों के जरिए लोगों को जानकारी दी जा रही थी कि कुछ लोगों ने लॉकडाउन के दौरान तामीराती काम शुरू किए थे, जिन्हें बंद करवाया गया। कठुआ के ब्लॉक मरनोती में पंचायत कंडी के सरपंच कुलदीप सिंह पर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला किया। हमले में कुलदीप सिंह शदीद तौर पर जख्मी हो गए। उन्हें GMC कठुआ में इलाज के लिए दाखिल कराया गया। सरपंच के रिश्तेदारों ने मुलविस अफराद को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। DDC चेयरमैन प्रसन्न पुंछ ताजिम अख्तर ने पुंछ के चंदक और साथरा में मौजूद PHC के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर फराहम करवाया। उन्होंने कहा कि आइंदा दिनों में वाक़या PHC में भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए जाएंगे। ताजिम ने PHC में मौजूद सहूलियात का भी जायजा लिया।